Subscribe to our YouTube channel and don't forget to press the bell icon to get all the latest updates. The pale pink fan bears witness to the terrible tragedy that unfolded in this tiny room in 2020. When to this rickety bamboo pole, Mukesh Mandal, a daily wager from Bihar, tied his wife's scarf and then hung himself. "365 days now separate these two photographs. Poonam, Mandal's wife, and the passport picture memory of her husband, all that remains. We were here then, just hours after Mandal's suicide, on a rainy day as the skies opened up in grief. We came here after we heard that a migrant worker has taken his own life, that the economic hardship proved too much for him to take. The world's largest lockdown had shut down all economic activity at the height of the COVID-19 pandemic. For migrant workers like Mandal, who got the odd job painting houses under construction, there was suddenly no work and absolutely no money. So Mandal sold his prized possession, a mobile phone, for 2,500 rupees. With the money, he bought a fan, some wheat, rice and dal for his family, and then, suddenly, quietly, took his own life. खाने के लिए नहीं था, बोला कि जो मेरे बाल बच्चे सारे भूखे प्यासे मर जाएगा। वो फोन बेचा खाने के लिए दीदी जी। अब कितने में वो बन्हक लगाया, बन्हक में कितना लाया, वो पंखा लिया और 200-400 के राशन लाया और दीदी जी, और उसके पास 1 रुपया नहीं देखे। A year later, we head back to Saraswati Kunj, the urban village on the outskirts of Delhi, in the border state of Haryana. Past luxury hotels, past Art Deco boutique buildings, till the swanky highways of Gurgaon and the international airport have been replaced by this: garbage landfills, open sewage drains, and a mountain of flies. And we are back at Mukesh Mandal's colony. Little shanties, cupboard-sized rooms really, held together by makeshift metal sheets. This tiny room is what Mandal's family, 4 children, his wife Poonam and her parents, call home, where a half-eaten fruit infested with flies underlines the battle that everyday life can be. The very real fear of starvation, of not enough food on the table, had pushed Mandal to despair and then to the extreme step of suicide. Today, his wife Poonam's priority is that somehow her 4 children must not go hungry. अच्छा, बच्चों को क्या खिलाते हैं? आप बता रहे थे क्या मुश्किल होती है? बच्चों को खिलाने के लिए यही मुश्किल होता है, दूध नहीं मिलते हैं और दुकान का बच्चे लोग ज़्यादा मांगते हैं खाने पीने के लिए, जैसे बिस्किट है, चॉकलेट, कुरकुरे, ये सब। दिन में 3 बारी रोटी खा पाते हो? नहीं, दिन में 3 बार तो नहीं खा पाते हैं। कितनी बारी खा लेते हो? 2 बार हो या 1 बार, ऐसे 2 बार भी चल सकता है। टेंशन में क्या खाएगा दीदी। There has been no time or space to grieve the death of her husband. Instead, it's been a battle just to survive. A year after the lockdown, there is still no source of steady income. An NGO pays the rent on their house, 5,000 rupees every month, and leaves basic rations for them once in 30 days. Poonam has been to all the posh housing societies and skyscrapers in the vicinity to offer to work as domestic help. But every time she's turned away right from the gate. Like thousands of other migrant workers' families, she does not have an Aadhaar card, the government-mandated digital identification that employers first want to see as proof. आपने काम ढूंढने का कोशिश किया? बहुत किया। क्या हुआ फिर? कहाँ गए आप? ये इधर सिकंदरपुर से आगे गए थे ढूंढने, उधर बहुत, फिर उसके बाद इधर भी गए थे ढूंढने। आज भी किसी को बोले थे, सही बंगाली थे आसपास के, वो उनको तो हमको फ़ोन किए थे, बोले ठीक है तुम आ जाना, हम तुम्हें काम पर लगा देंगे। किस तरह का काम ढूंढ रही थी आप? कोठी का सफाई के, झाड़ू पोछा। तो क्या हुआ, नहीं मिला काम? नहीं मिले, खाना बनाना ये सब। क्या बोले, क्यों नहीं आपको काम दे रहा कोई?
हमारे आधार कार्ड नहीं है, इसकी वजह से हर जगह जाते हैं तो आधार कार्ड मांगते हैं। अच्छा, आधार कार्ड नहीं है तो प्रूफ मांगते हैं कि भाई आइडेंटिटी दिखाओ, और आप दिखा नहीं पाते इसलिए काम नहीं मिल रहा। नहीं मिलते। जब आप घरों में गए काम ढूंढने तो क्या बोला आपको? वो गेट पर तो आधार कार्ड ही मांगते हैं, तुम्हारे पास प्रूफ है दिखाओ, तो प्रूफ नहीं होते हैं, तो इसी वजह से हम फिर लौट जाते, बोलते तो नहीं होगा। तो जब आपने कोशिश किया आधार कार्ड बनवाने की? हाँ, कोशिश किए हैं। वो क्या हुआ फिर जब आप गए? बोले अभी तो नहीं बन रहे हैं, जब बनेंगे तो हम बताएंगे। बहुत लोगों से पूछ के जिनको पते हैं, जो जाते आते हैं उनसे, तो वो लोग बोले क्या बनेंगे तो हम बता देंगे, ऐसे ही सब बोल के रह जाते हैं। Inside, the children play with Poonam's handbag. They want us to see a better photograph of their father, one where the entire family had dressed up in happier times and smiled for the camera. ये मेरे पापा है, ये गोलू है, ये मैं हूँ, ये मेरे मम्मी है, ये मेरी छोटी बहन है काजो, और ये मेरी नानी है। For hundreds of thousands of families like this one of Mukesh Mandal, the tragedy of 2020 is a loss frozen in time. And they are not the only ones. A new survey, the Rozgar survey, finds that 75% of migrant workers have no access to a source of income. 45% report a shortage in food, and 31% have no access to health care. At the height of the pandemic, our workers were our forgotten people. A year on, they are even more pushed to the margins of national and media attention. This is a story of economic hardship, but it is also a story of women. How women support each other, how women must carry the lion's share of responsibility for their families, and how women, despite all this, are still judged, scrutinized, and often isolated. Sunita, Poonam's mother, says she would like to return to their village in Madhubani in Bihar. It has now fallen to her to look after the 4 children when Poonam goes out to search for work every day. Sunita's husband, Poonam's father, is an alcoholic and almost never around, she says. सुनीता देवी, आप ये बताओ कि आप लोगों ने सोचा कि हम बिहार वापस जाएं, और नहीं गए तो क्यों नहीं गए? देखो जी, मेरे रहने को तो ठिकाना है ही नहीं। बुढ़ा ने बेच के दारू में पी के उड़ा दिया भाई भौजा के पास 10 नमा करा के। कौन दारू पीता है? आपका आदमी? मेरे बुढ़ा ने। आपका बुढ़ा पीता है? हाँ। तो मेरा तो रहने को जी कोई साधन है ही नहीं। और बेटी का भी जब से मेरे दामाद ख़त्म हुआ, पहले यार हफ्ते 15 में सब कुछ लेके जाता, 2-4-500 रुपया भी लेके जाता। कोई सामान देखता बढ़िया तो ये पसंद है, पहले मैं बेटी काम में लगा दिया था, तो बिना आधार कार्ड से पहले चलता था काम। 8,000 के महीना मेरा बेटी भी कर रहा, दामाद भी कर रहा, तो अब तो वो भी दोनों का कमाई में, दोनों में खर्चा खूब अच्छे तरह से चल रहा। अब कोई काम नहीं मिलता? हाँ, अब तो कोई काम नहीं लग रहा, उसको भी कोई कमाने वाला नहीं है। Before her son-in-law's suicide, Sunita would accompany Pinky, a neighbor and a friend. Pinky is a vegetable vendor and also a single mother. Sunita and Pinky would take a small cart of onions and potatoes around the neighborhood to try and make ends meet. Pinky tells us that Poonam has been subjected to the worst sort of character assassination ever since her husband's passing. पिंकी, आप ये बताओ, आप तो परिवार को जानते हैं, किस तरह से इनकी मुश्किलात आप देख रहे हैं, और क्या मतलब पूनम के, आप बता रहे थे कि लोग आके गलत भी बोलते हैं पूनम को? हाँ बिल्कुल, उनके जब हस्बैंड मरा तो उनके बारे में बुराई की बात करते कि ये औरत अपने हस्बैंड का मरने का हाथ है, दूसरे आदमी के साथ इसका कोई संबंध है, ठीक है, ऐसी बकवास भी करते हैं? जी, ये अगल बगल वाले। हाँ। और इनके रिश्तेदार भी, जैसे उसका ननंद हो गया, सासू हो गई, जो भी है। और पूनम की मम्मी मेरे साथ बहुत अच्छे से काम करती है, मतलब हम फेरी लोहे वगैरह जो भी चुनते 100-200 जो होता है, बहुत मेहनत करती है। और उनके आदमी जो है, जो बूढ़ा आदमी, वो मंदिर में जो मांगता है बच्चे लोग को आके वो पालता है। लेकिन इनकी बेटी के बारे में बुराई सब कुछ क्या बोलते हैं? यही बोलते कि उसके आदमी मर गया तो उसके हाथ है, और ये दूसरे आदमी के साथ शक करते, फोन में बात करती है वगैरह ये सब। तो हमेशा औरत को ही दोष दिया जाता है। तो गुस्सा नहीं आता आपको ये सुन के? गुस्सा आता है, हमारा भी आदमी नहीं है, हमारा भी 2 बच्चे, बूढ़ा बाप को मैं भी पालती हूँ। औरत को औरत ही जानती है, औरत का दर्द औरत ही जानती है। यही हम सोचते हैं कि क्यों अब उसका इतना छोटा बच्चा है, उसकी माँ पाल रही है, कैसे वो गुजारिश कर रही है, क्या नहीं कर रही, वही जानते हैं। दूसरे बोलने से कुछ नहीं होता है। लेकिन ये दुनिया समझदार ना बिल्कुल बेकार है।
ये सब बोलना नहीं चाहिए, एक औरत के पीछे में नहीं बोलना चाहिए। अब वो आदमी का कमजोरी हो गया तो वो मर गया, लेकिन इसमें उसकी कोई हाथ नहीं है। अब उसकी उम्र है, वो किसी से बात भी कर सकती है, किसी के साथ रिश्ता भी रख सकती है, ये भी हो सकता है। लेकिन ये नहीं सोचना चाहिए कि आदमी को मार के दूसरे आदमी कराए, ये गलत है। और बहुत दर्द होता होगा। दर्द होता है। हमारे भी आदमी नहीं है, आंटी जानती, पूनम की मम्मी, मैं किस तरफ से मैं भी जीती हूँ, मैं भी झेलती हूँ, मैं भी जानती हूँ। एक साथ हम ये करते हैं। When we ask Poonam about this, there is no anger or bitterness in her. She quietly looks down at her feet and just shrugs her shoulders. But the vacant, empty look in Poonam's eyes captures her inner trauma. The only time she smiles is at the antics of her children. आप यहाँ देख सकते हैं, ये सबसे छोटा बच्चा है और ये हमारे अभी, अगर कैमरा इस तरफ आए तो आप देख सकते हैं हमारी तारों को ये खा रहा है और अभी भी हंस रहा है इतने परेशानी में। और सबके नाम, इसकी क्या उम्र है? 1 साल का। हमारी सारे वायर्स को ये खा रहा है। और इसका नाम? इसको काजू कुमारी। काजू लड़की है? काजल। हेलो काजू। और ये सोनी। और 4th कहाँ गया? गोलू। और ये गोलू। डीजे बजता है ना, ये नाचता है। जब डीजे बजता है तो ये नाचता है। कितनी भी मुश्किल हो, एक बच्चे की सर्वाइवल इंस्टिंक्ट एंड कैपेसिटी फॉर हैप्पीनेस never diminishes, and that's all that gives you hope and belief at this point, that his sibling just told us कि जब डीजे बजता है तो ये नाचता है। और आप भी इतने मतलब इतने आपकी मुश्किल है, लेकिन बच्चों को देख के हंसी कभी कभी आ जाती है, नहीं पूनम? हाँ। Poonam's 4 children give her a purpose to keep soldiering on. Else, the year of COVID and the lockdown for her has been a year of bereavement, of struggle, and of loneliness. The story of one family, but the story perhaps of millions of others too. ये एक नियम और होना चाहिए इंडिया में, जो कि सबसे पहले मंत्री हो, कोई भी हो, उसका बेटा और मंत्री जो भी विधायक का चुनाव लड़े, चाहे मुख्यमंत्री का, उसे लद्दाख में ले जाया जाए और 1 साल का वो कोर्स कंपल्सरी किया जाए, उसे 1 साल वहीं रखा जाए। बाद उसे टिकट मिले तब वो मुख्यमंत्री पद बनने का दावेदार हो। चार बार मारा भी मेरे को, क्या करूँगा, कहाँ जाऊँगी, यहीं रहूँगी और क्या करूँ। मत रो प्लीज, मत रो। नहीं रहूँगी। नहीं, वापस तेरे सीमेंट कभी नहीं आएंगे, क्या कि हमारे साथ कंपनी बहुत धोखा किया हुआ है। वापस कभी नहीं आओगे? नहीं आएंगे। हम लोग के लिए कभी पूछताछ करने अभी कभी नहीं आया कंपनी की तरफ से कि तुम लोग खा रहे हो कि पी रहे हो कि नहीं कर रहे हो, हम लोग तुम लोग का पैसा है कि नहीं है, कि तबीयत खराब है कि क्या है, आज तक हम लोग का मेडिकल चेक भी नहीं हुआ था। कैसे हम लोग कहें कि व्यवस्था है? मुझे बताओ, कोरोना वायरस का आपने नाम सुना है, उसका क्या मतलब समझते हो आप? मुझे ठीक से खाना नहीं मिल रहा है। आप कोरोना वायरस का मतलब समझते हो कि ठीक से खाना नहीं मिल रहा? मतलब खाना ठीक से नहीं मिल रहा है। जो प्लेन से आया और सफ़र कौन कर रहा है? साइकिल वाला। और सच्ची बात है ना, क्या बोल सकते हैं? ये आपने ठीक बोला कि वायरस आया प्लेन से और सड़क पे है साइकिल वाला। हाँ, क्योंकि सबको ऐसा लगता है कि झोपड़पट्टी से आता है बीमारी। झोपड़पट्टी से नहीं है ये बीमारी आपके यहाँ से आई है और सफ़र हम कर रहे हैं।
It's great to see you here. Thank you for watching our work. If you haven't subscribed yet, don't forget to click the bell icon and subscribe to Mojo Story and support independent, robust journalism.